خبر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر کیسا ہوگا، الیکشن کمیشن حتمی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کی رائے پر مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا۔ سینٹ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر کیسا ہوگا، الیکشن کمیشن تاحال حتمی فیصلہ نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کی رائے پر مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس اس حوالے سے آج پھر ہوگا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ذیشان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان بھٹی بتائے گا، ایک بار پھر سے الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور بیلٹ پیپرز کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی؟ جی بالکل، گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جو رائے سامنے آئی تھی اس پہ الیکشن کمیشن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، اور اس لیے آج ایک بار پھر الیکشن کمیشن نے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن قابل شناخت یا خفیہ بیلٹ پیپرز بنانے کا فیصلہ آج مشاورت میں کرے گا۔ اس کے علاوہ مختلف تجاویز بیلٹ پیپرز کے حوالے سے زیر غور ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بیلٹ پیپر سیکرٹ یا کوئی نشانی لگانے جانے کے حوالے سے بھی تجاویز آئی ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن آج جب مشاورتی اجلاس بلائے گا تو اس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کو صاف شفاف منصفانہ انتخابات کے اقدامات اٹھانے کا حکم دیا تھا، اور الیکشن کمیشن آج جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد بیلٹ پیپر چھاپے جائیں گے، جبکہ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ جو ہے وہ کل ہونی ہے، تو الیکشن کمیشن تقریباً 2500 کے قریب تینوں صوبوں اور قومی اسمبلی کی ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر چھپوائے گا۔ ٹھیک ہے ذیشان بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے، اوپن بیلٹ سے نہیں کرائے جا سکتے۔ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے صدارتی ریفرنس پر مختصر تحریری رائے دے دی۔ رائے 4-1 کی اکثریت سے سنائی گئی۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومتی آرڈیننس ختم ہو گیا۔ تحریک انصاف 17 ممبران صوبائی اسمبلی کو ہوٹل میں روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ 3 باغی ارکان اسلم ابرو، شہریار شر اور کریم بخش نہ آئے، جبکہ 10 ارکان وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، تحریک انصاف 17 ممبران صوبائی اسمبلی کو ہوٹل میں روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ 3 باغی ارکان اسلم ابرو، شہریار شر اور کریم بخش نہ آئے، جبکہ 10 اراکین ایسے ہیں جو کہ وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں 3 اراکین اسمبلی ہیں، شہریار شر، کریم بخش اور اسلم ابرو، جو کہ بغاوت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور شہریار شر، کریم بخش نہیں آئے، جبکہ 10 ارکان ایسے ہیں جو کہ وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے ارکان سندھ اسمبلی کو سینٹ انتخابات سے قبل الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اراکین اسمبلی 3 مارچ تک اپنے گھروں کی بجائے محفوظ مقام پر رہیں گے۔ خواجہ اظہار الحسن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سینٹ کے لیے خرید و فروخت کروڑوں تک پہنچ گئی۔ آزاد نوریو کی رپورٹ۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی سینٹ انتخابات سے قبل محفوظ مقام پر چلے گئے، سوائے خواجہ اظہار الحسن کے کوئی رکن اسمبلی نہ آیا۔ یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ جو کروڑوں تک پہنچ گیا ہے، یہ نہ صرف پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہے بلکہ یہ جمہوری اقدار کے بھی منافی ہے۔ تو اگر اس میں کوئی ایسا طریقہ کار آتا ہے جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں ووٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور ووٹ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ ایم کیو ایم ارکان کے اجلاس میں غیر حاضری کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، ان کو سیکورٹی نہیں دی گئی۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب نے کہا، حکومت ایم کیو ایم ارکان کو مکمل تحفظ دینے کو تیار ہے، ایم کیو ایم والے تحریری درخواست دیں۔ جس طریقے سے تحفظ چاہتے ہیں ہم تحفظ فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آفیشیل کمپلین انہوں نے اگر کی ہو اپنے ایم پی ایس کے حوالے سے تو بالکل سندھ پولیس یا لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ کارروائی کریں گے اور ان کو وہ پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ وہ پریشانی ہے جو کہ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کو اس وقت لاحق ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ایم پی ایز وفاقی حکومت کے بوجھ سے نکل نہیں سکتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سینٹ انتخابات کے لیے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ایم کیو ایم ارکان نے اس میں بھی شرکت نہیں کی۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ آزاد نوڈیو 24 نیوز کراچی۔ کراچی میں وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ نے اراکین اعزاز میں عشائیہ دیا۔ عشائیے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، فریال تالپور، اسپیکر اسمبلی آغا سراج دورانی شریک ہوئے۔ قائم علی شاہ، نثار کھوڑو، مکیش کمار چاولہ، شرجیل انعام ایمن نے بھی شرکت کی۔ سینٹ امیدوار سلیم مانوی والا، پلوشہ خان، تاج حیدر، جاں مہتاب ڈہر اور دیگر بھی عشائیے میں موجود تھے۔
कराची में वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाइया दिया, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी शरीक हुए। इसके अलावा कायम अली शाह, निसार खोड़ो, मुकेश कुमार चावला और शर्जील इनाम यमन भी इसमें मौजूद थे, जबकि सेनेट उम्मीदवार सलीम मांडवी वाला समेत पलवशा खान, ताज हैदर, जामेहताब डहर और दीगर ने भी इस इशाइये में शिरकत की। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर दिया है। जमात इस्लामी KPK में तो अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को वोट देगी, लेकिन सिंध असम्बली और मरकज में किसी भी जमात को वोट ना डालने का उनकी जानिब से फैसला किया गया है। जमात इस्लामी ने ये तय किया है कि हम KPK की हद तक अपोजिशन पार्टियों का साथ देंगे, क्योंकि वहाँ हमारे वोटों की एडजस्टमेंट की एक सूरत मौजूद है। वहाँ अपोजिशन की पार्टियां जमात इस्लामी की खातून उम्मीदवार को वोट देंगी और उसके बदले में जमात इस्लामी के अरकान उनके जनरल सीट और प्रोफेशनल सीट और अक़लियत को उम्मीदवारान को वोट। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन के लिए ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करने और दीगर अरकान से राब्ते की हिदायत कर दी है। इस हवाले से वो क्या हिदायत कर रहे हैं, जानते हैं उस्मान खान से। उस्मान खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का एक अहम मुशावरती इजलास और एक इशाइया सिंध हाउस इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाक से उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आखिरी 2 दिन है और ये बहुत अहम है। तमाम अरकान दीगर अरकान से अपने ताल्लुकात है और उस पर ज़ाती ताल्लुकात पर राब्ते करें। सेनेट इलेक्शन हम सब के लिए बहुत ही अहम मौका है। हम सियासतदान हैं, हमारे पास बंदूक नहीं, हमने जंग करनी है तो पार्लियामान में और जमहूरी तरीके से करनी है। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज बेहतर आ रहे हैं और हम सबको उम्मीद है कि वफाक से PDM और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी तफसीली तौर पर अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान। वीडियो स्कैंडल पर हुकूमती इंक्वायरी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कमेटी के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। मुश्ताक अहमद इल्जामात के हवाले से अहम बयान और शवाहिद देंगे, जबकि दीगर सेनेटर्स और साबिक अरकान सूबाई असम्बली ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी, मुश्ताक अहमद खान जो कि उन्होंने फैसला किया है कि वो आज कमेटी के सामने पेश होंगे। दीगर इनके जो 4 सेनेटर्स थे और दीगर जो अरकान थे 20 MPs जिनकी वीडियो स्कैंडल्स में जो तहकीकात चल रही हैं उस पर इनको मदऊ किया गया था, लेकिन मुश्ताक अहमद खान ने यह फैसला किया है कि वो कमेटी के सामने पेश होंगे और तमाम हकायक और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनकी तफसीलात जो है वो मीडिया के सामने ही पेश करेंगे और कमेटी के सामने ही पेश करेंगे। तो दीगर जो सेनेटर्स थे उन्होंने और अरकान जो PTI के अपने जो सबका MPs थे उन्होंने कहा था कि परवेज खटक और असद कैसर को इसमें बुलाया जाए ताकि असल हकायक सामने आए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो फवाद चौधरी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि अगर ये जिनको हम बुला रहे हैं अगर ये नहीं भी आते फिर भी हम अपनी सिफारिशात जो है मुरतब करेंगे और काबीना के सामने और वज़ीर आज़म के सामने पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसमें कोरोना की एंट्री ने खलबली मचा दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मैच मुलतवी कर दिया गया। PSL इंतजामिया ने इवेंट में शरीक तमाम टीमों के PCR टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। सुबह सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के टेस्ट कराए जाएंगे। दोनों टीमों की ग्राउंड में एंट्री मनफी रिपोर्ट्स आने से मशरूत है। खेलों से वाबस्ता खवातीन को खराजी तहसीन पेश करने के लिए लियारी में तकरीब का इनेकाद किया गया। खवातीन खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करके उनकी हौसला अफजाई की गई। कराची से आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। खेलों के मैदान में अपनी धाक बिठाने वाली खवातीन खिलाड़ियों के एहसास में लियारी में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि बॉयज़ तो पहले से ही स्पोर्ट में थे, लेकिन अब जो है गर्ल्स भी आ रही हैं। हम लोग नेशनल गेम्स खेलने के लिए गए थे और हमारे पूरे सिंध के टीम से जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी स्पोर्ट्स मैन थे, स्पोर्ट वुमेन थे, सब में से सिर्फ 2 गोल्ड मेडल आए। एक मैं थी और एक दूसरी लड़की थी, वो भी वुमेन्स गोल्ड मेडल लेके आए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कोशिश यही होती है कि लियारी के जो बच्चे नेशनल प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और भी हर फील्ड में ऐसे बच्चे होते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन्हें अप्रिशिएट कर। तो मुंतज़मीन का कहना था कि लियारी ने पाकिस्तान को बेशुमार खिलाड़ी दिए। खवातीन खिलाड़ी भी हर मैदान में अपना लोहा मनवा रही हैं। हमारी बच्चियां भी हैं जो खास तौर पर बॉक्सिंग में, साइकिलिंग में और फुटबॉल में आगे आ रही हैं। लियारी का अपना एक कल्चर है।
लियारी में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। और ब्रायलर गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। 8 रुपये मजीद इजाफे से फी किलो कीमत 339 रुपये हो गई। 2 दिनों में कीमत 19 रुपये बढ़ने पर लाहौरी सीख पा हो गए। सईद अहमद सईद की ये रिपोर्ट देखिए। धागे की बढ़ती कीमतों के असरात आम आवाम पर भी पड़ना शुरू हो गए। धागा महंगा होने से लॉन की कीमत भी बढ़ने लगी। ताजरों का इस हवाले से कहना है कि 1200 में बिकने वाला लॉन का सूट 1600 रुपये में खुद ही खरीदना पड़ रहा है। फैसलाबाद से शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। धागे की कीमतों में इजाफे के असरात एक्सपोर्ट के साथ साथ आम शहरियों पर भी पड़ने लगे। सीजन शुरू होते ही लॉन की कीमतों में इजाफा हो गया। 1200 रुपए में बिकने वाला सूट आज दुकानदार को ही 1600 रुपए में मिल रहा है। दुकानदार कहते हैं गाहक बहस करके वापस चला जाता है। पर सूट 400-400, 500-500 रुपए पर सूट महंगा हो गया है। कस्टमर है नहीं, कोरोना की वजह से पहले कस्टमर नहीं था, अब तो और बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब ये देखे क्या सूरत हाल बनती है। ताजरों का कहना है कि कारोबार तबाह हो चुके हैं, जबकि लोगों में अब कुव्वत खरीद भी नहीं रही। उन्होंने कहा अब लोगों की तरजीह पहनावे नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी है। लॉन की बढ़ती कीमतों से अब मार्केटों में भी गाहक ढूंढने से नहीं मिलते। ताजरों ने हुकूमत से रुई की कीमतों को काबू करने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने लाहौर दाता दरबार पनाहगाह का अचानक दौरा किया। उन्होंने पनाहगाह में मुकीम अफराद से मुलाकात भी की और उनके मसाइल भी पूछे। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने खाना खाकर उसका मयार भी चेक किया। खातून अव्वल बुशरा इमरान अचानक दाता दरबार पनाहगाह पहुंच गईं। खातून अव्वल ने पनाहगाह में मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों और इंतजामात का जायजा लिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से खाने के मयार और रिहायशी सहूलतों बारे दरियाफ्त किया और खाना खाकर खाने का मयार भी चेक किया। पनाहगाह में मुकीम अफराद के खाने के मयार की तारीफ की। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह में मुकीम अफराद से उनके मसाइल भी पूछे। लोगों ने मसाइल के हल के लिए जाती दिलचस्पी लेने पर खातून अव्वल बुशरा इमरान का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने पनाहगाह इंतजामिया को क़याम ताम के लिए इंतजामात और सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि पनाहगाहों की इमारतों की जरूरी मरम्मत के लिए फंड्स तरजीही बुनियादों पर मुहैया करेंगे। यहाँ का मुझे बहुत पता लगा था कि यहाँ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए मैं खुद देखने आ गई। लेकिन इस दफा देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। जब भी खान साहब पर कोई भी आज कामयाबी है उसके पीछे कहते हैं कि खातून अव्वल की बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत कामयाब बंदे के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम इन लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहे बल्कि ये इनका हक है। खातून अव्वल बुशरा इमरान का कहना था कि अल्लाह ताला ने भी सिला रहमी का हुक्म दिया है। पनाहगाहों में मुकीम लोगों का खुसूसी ख्याल रखना जिम्मेदारी भी है, फर्ज भी और नेकी भी। पीपल्स पार्टी ने 26 मार्च से लॉन्ग मार्च कराची से शुरू करने का ऐलान कर दिया। यौम शोहदाए जमहूरियत के हवाले से मुनक्किदा जलसे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो समेत पार्टी के तमाम शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुनक्किदा जलसे से पार्टी के सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो के अलावा पार्टी रहनुमाओं शहला रजा, वकार मेहंदी, लियाकत आसकानी और जावेद नागौरी ने खिताब किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि अजीमुल शान लॉन्ग मार्च की क़यादत बिलावल भुट्टो करेंगे। अपने नाना का नाम रोशन करना चाहता है, अपनी बहादुर माँ का नाम रोशन करना चाहता है, अपने बहादुर कारकुनों का नाम रोशन करना चाहता है और दिल जिगरे का बंदा है। और दिल जिगरा वाला जब बोलता है तो हाँ लर्जेगा इमरान खान और उसकी टीम भी। 161 अरब रुपए नहीं मिले, केसीआर के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी ये बची कुछ ही सीटें भी नहीं होंगी। आपको अगर कराची वालों का दिल जीतना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों से लेकर आला क़यादत तक कुर्बानियों की लासवाल दास्तानें हैं। 1 मार्च का दिन इन तमाम शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तस किया है। इमरान खान ने वादा किया था मैं शहर को 162 अरब रुपए दूंगा, शायद 1 अरब माइनस कर गई थी, लेकिन 162 अरब रुपए कहाँ हैं? यौम शोहदा जमहूरियत की मुनासबत से मुनक्किदा जलसे में कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन इमरान इब्राहिम और साथी रिपोर्टर महक खान के हमरा मोहम्मद कामरान, 24 न्यूज़, कराची। सिंध में भी कोरोना के बायस आयद बड़ी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध में पार्क्स को वक्त की शर्त के बगैर खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं।
इक़्तिदार बताएगा मजीद कौन कौन सी पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं। बहुत जनाब, आपका सबसे बड़ी खुशखबरी PSL के शायकीन के लिए है कि 50% शायकीन जो है वो मैच देखने जा सकेंगे। इसके अलावा कराची में जो पार्कों की टाइमिंग थी उसे खत्म कर दिया गया है, 24 घंटे पार्क खुल सकेंगे। 50% लोग जो घरों से बड़े काम करने की पाबंदी थी उसे खत्म कर दिया गया है। जबकि शादी हाल मालकान के लिए खबर यह है कि 10 मार्च को NCOC की मीटिंग में दोबारा रिव्यू किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इंडोर शादी की परमिशन होगी या नहीं। साहब, बहुत सारी पाबंदियां जो है इनको खत्म किया गया है। ठीक है, इक़्तिदार बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान के दरमियान एक बार फिर तल्ख जुमलों का तबादला हो गया। शर्जील मेमन और हलीम आदिल शेख ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा दिए। अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर शोर शराबा किया तो स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली का ऐवान एक बार फिर मछली मंडी बन गया। अरकान का एक दूसरे से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शर्जील मेमन और हलीम आदिल शेख ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा दिए। पुलिस इनके कहने पे चल रही है, MPA उसको बैठ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन शर्जील इनाम मेमन ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन के दिन हलीम आदिल शेख क्रिमिनल लोगों के हमरा गैर कानूनी जदीद असला साथ लेकर घूम रहे थे। ये है वो G3 की तस्वीर। नहीं है, मैं इस्तीफा देता हूं, आप लोग इस्तीफा दो। ये बताइए G3 किसकी है? हलीम आदिल शेख ने जवाबन इल्जाम लगाया कि इन पर जेल में हमला शर्जील मेमन ने कराया। रात को 11 बजे हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल आता है। उसने मुझे कहा कि अभी अभी शर्जील मेमन का फोन आया है हसन सहतो सुप्रीडेंट जेल के उसको बताना है कि वो उसको मच्छर खा रहे हैं कि शर्जील मेमन ने मुझे अभी फोन किया है कि वो आराम में तो नहीं है। अपोजिशन के तल्ख जुमलों का जवाब देते हुए PP रहनुमा मुकेश कुमार चावला भी गुस्से में आ गए और बोले कोई बदतमीजी करेगा तो इससे इसकी जबान में ही जवाब देंगे। आप बदतमीजी करेंगे तो इधर से भी बदतमीजी होगी। अगर आप हमारी लीडरशिप पर बात करेंगे तो फिर खामोश हम भी नहीं बैठेंगे। स्पीकर आगा सराज दौरानी के लाख समझाने पर भी अरकान ने शोर शराबे और इल्जाम तराशी का सिलसिला तर्क न किया तो इन्होंने पहले माइक बंद कराए और फिर इजलास मुलतवी करा दिया। कैमरामैन शौकत अली के हमरा आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। खारियां के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत पीर सैयद मीरा बाकिर अली शाह के सालाना उर्स की तकरीबात खत्म हो गईं। सरपरस्त सजादा नशीन पीर सैयद तनवीर नकवी ने की। मज़ार को गुस्ल देने के बाद दुआ कराई गई और लंगर भी तकसीम किया गया। पीर सैयद साबिर हुसैन शाह और दीगर ने पीर सैयद तनवीर नकवी की दस्तारबंदी की। दिन भर मुरीदैन मज़ार पर हाज़िरी देते रहे, चादरें चढ़ाईं और ढोल की थाप पर धमालें भी डाली गईं। नमाज इशा के बाद महफिल समा हुई। मारूफ कव्वाल वजाहत अली खान ने कवालियाँ पेश की। सेंटोस फुटबॉल क्लब में फेम क्लब ने मैदान मार लिया। फाइनल में फेम फुटबॉल क्लब ने सुई सदरन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। लाहौर में हुए सख्त टाकरे का पहला हाफ 1-1 गोल से बराबर रहा, लेकिन दूसरे हाफ में फेम ने बेहतरीन खेल पेश करके सुई सदरन को आउट क्लास कर दिया। फेम फुटबॉल क्लब के सदर ज़िया डोगर ने खिलाड़ियों के लिए 2 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।